Good morning to all. Myself Sushil Gupta. I teach biology in Government Senior Secondary School, Hatkad. In these days, we all teachers are giving online lectures to our students due to coronavirus. So, in my last lecture, uh, we have discussed the basic definitions of asexual reproduction and sexual reproduction. As you know that this thing, asexual reproduction, this is the development of the offspring from a single parent with or without the formation of gametes, but there is no fusion of gametes takes place in asexual reproduction. So this is the basic definition of asexual reproduction. So today I will start with some basic features of asexual reproduction. This question can be asked in the academic exam of 2.5 mark or 2 marks. So I'm starting with the first feature. This reproduction, this is uniparental. Uniparental means single parent is involved, as I have already discussed with you this thing. Second thing, unit of reproduction is an unspecialized or specialized part of the parent. So unspecialized part means some part can be detached from the parent body, and that can develop a new daughter individual. Or specialized part means a bud or protrusion from the parent body that can develop a new individual. So that part may be unspecialized or specialized part which can develop a new daughter individual. Somatogenic reproduction. So this reproduction is also called somatogenic reproduction, means this reproduction can take place in somatic cells. Somatic cells mean non-reproductive cells. Somatic cells means non-reproductive cells. Fourth one, there is no fusion of gametes takes place in asexual reproduction, means this is agamogenesis. That means the development of daughter individual from single parent without the fusion of gametes. So this is called agamogenesis. Fine. So fifth feature, that meiosis is generally absent. So meiosis, this is reduction division. There are two types of main types of divisions, mitosis and meiosis. So meiosis is generally absent in asexual reproduction. Fine. So this here, so what type of division takes place in asexual reproduction? So I must say mitotic division, not meiotic division, takes place in asexual reproduction. Sixth one, the young ones or the offspring produced are morphologically and genetically similar individuals. That means all the individuals develop in asexual reproduction, offspring develop in the asexual reproduction, they are morphologically, means the external appearance they are same, and they are genetically, means their genetic constitution is same. That means the group of individuals which are morphologically and genetically identical, the group is called clone, and the single individual of the clone is called ramete, and the group of individual is called clone. Fine. So young one or the offspring, they are identical to their parent and they are identical to themselves. वो एक जैसे भी होते हैं और वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर भी होते हैं. Seventh is quick method of multiplication. Asexual reproduction is a quick method of multiplication. That means here the number of offspring that can be increased in quick succession of time. Eighth one, here this reproduction does not introduce variation. Variation can be developed by the fusion of gametes. So if there is no fusion of gametes, that means here the chances of variations are rare. So this does not introduce variation. And the ninth one is examples of asexual reproduction. That means this type of reproduction is common among single-celled organisms, like suppose amoeba, suppose euglena. Fine. So, or I can say this is also common in lower plants or lower animals. So lower animals, lower plants means suppose you can see it in Chlamydomonas, or lower animals you can
see this in phylum Porifera. I'll suppose Spongilla. Fine. So all these features, they are of asexual reproduction. Fine. Is it clear? So this is very important. So you must remember all these features of asexual reproduction. Then I am coming to the types of asexual reproduction. So there are various types of asexual reproduction, and the first one is called fission. Fissions means cleavage. Fission, the basic meaning of fission, that is cleavage. So what do you mean by fission? What do you mean by fission? So here is that type of asexual reproduction where a parent individual divides into two or more daughter individuals. Means a parent can divide into two daughter individuals or more than two daughter individuals. Fine. Here the whole parent body act as a unit of reproduction. Fine. I can say the whole body means the whole body of the organism that can act as a unit from where the daughter individuals develop, either two or more than two daughter individuals. So I can say on the basis of this whether the two daughter individuals develop or more than two daughter individuals develop. So there are two main types of fission. The first one is binary fission. As you can see this thing, binary means two. So binary fission means where a parent organism divides into two equal daughter cells. That means a single parent gives rise to the formation of two equal daughter cells in binary fission. And another point is this occurs during the favorable condition. बाइनरी फिशन तभी होगा जब कैसी कंडीशंस होंगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी. और यहाँ पर एक चीज और, हेयर द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स ओनली वंस. एक बार ही पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और दो डॉटर इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके साथ, अनदर टाइप ऑफ फिशन दैट वी विल डिस्कस लेटर. So here you can give the examples of binary fission, bacteria and amoeba. So bacteria में भी आप देख सकते हैं binary fission होता है, amoeba में भी कैसा हो सकता है binary fission, and unicellular organism. और ये किसके अंडर आता है, किस किंगडम के अंदर आता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. नेक्स्ट टाइप ऑफ fission, that is multiple fission. But before that I want to discuss with you the types of binary fission. आपको मालूम है कि बाइनरी फिशन में दो डॉटर इंडिविजुअल्स बनने, लेकिन वो किस तरह से बनने, वो डिवीजन किस तरह से होगा, वो क्लीवेज पेरेंट सेल में किस तरह से होगी, उसके बेस के ऊपर वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन. फर्स्ट वन, this is simple binary fission. Simple binary fission, this occurs through any plane. That means देख सकते हैं आप, डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है कि इसमें क्या चीज़ है, ये सिंगल एक पेरेंटल सेल है, ये डिवाइड कर रहा है. अब कैसे कर रहा है देखें, ओब्लिक कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली कर रहा है, ट्रांसवर्सली कर रहा है. किसी भी प्लेन के थ्रू जो है ये डिवाइड कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फिशन. कोई स्पेसिफिक प्लेन के थ्रू डिवाइड नहीं कर रहा, थ्रू एनी प्लेन, ओब्लिक, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. तो इसमें एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, अमीबा. वंस अगेन अमीबा. हमने बात की बाइनरी फिशन, तो बाइनरी फिशन में सारी एग्जांपल है, लेकिन अगर एमसीक्यू पूछता है कि अमीबा में स्पेसिफिकली कौन सा बाइनरी फिशन होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फिशन. तब हम बाइनरी फिशन उसमें ऑप्शन होगा तो वो गलत होगा, लेकिन एमसीक्यू में जब हमारे पास क्या होगा, सिंपल बाइनरी फिशन, तो सिंपल बाइनरी फिशन इज मोर appropriate as compared to simply binary fission. Fine, ये MCQ में आपको मदद करेगा. नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, another type of binary fission that is called longitudinal binary fission. यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है पेरेंटल सेल, और किस प्लेन के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये देखिए यहाँ किसी भी प्लेन के थ्रू ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनली है, ट्रांसवर्स है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कैसा,
लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के थ्रू जो है ये डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ऐसा बाइनरी फिशन जिसमें क्या है, वेयर द साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वेयर द साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पेरेंटल इंडिविजुअल, कहते हैं साइटोकाइनेसिस होगा अलोंग कैसा, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पेरेंटल बॉडी, ये पेरेंटल बॉडी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू यहाँ क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो रहा है, 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे। और कैसे बनेंगे, बाय द डिवीजन ऑफ, कैसे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन ऑफ द पेरेंट सेल। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। थर्ड वन में देखें आप क्या चीज हो रही है, यहाँ पर मेरे पास क्या चीज है कि ये पेरेंट बॉडी है और ये किसके थ्रू, अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल, ये डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, कैसे, occurs along transverse axis of the parent individual। देखिए यहाँ कैसे किसी भी प्लेन के थ्रू हो रहा है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ कैसा हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। तो दैट मीन्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या चीज हुई, तो द टाइप ऑफ आई कैन से बाइनरी फिशन वेयर द साइटोकाइनेसिस occurs along transverse आई कैन से व्हाट, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। तो इस तरह की डिवीजन, इस तरह की बाइनरी फिशन किस में देखी जा सकती है, पैरामीशियम में। किस में देखेंगे इसको, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी किस किंगडम में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। अब लास्ट वन में देखें आप क्या चीज है कि ना ही लॉन्गिट्यूडनल ना ही ट्रांसवर्स, बट एट सम एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। फाइन। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर पेरेंट इंडिविजुअल जो है वो 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, कैसे, बाय ओब्लिक व्हाट, बाइनरी फिशन। तो देखें आप कैसे, ओब्लिक बाइनरी फिशन का मतलब क्या हुआ कि वेयर द साइटोकाइनेसिस अकर एट एन एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, एट एन एंगल टू ट्रांसवर्स। दो सपोज दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ कुछ एंगल बन रहा है। दैट मीन्स वेयर द साइटोकाइनेसिस अकर एट एन एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। तो ये ऑब्लिक कट देगा, ऑब्लिक यहाँ पर क्या होगी, क्लीवेज होगी पेरेंटल इंडिविजुअल की, और बनने 2 ही है, सब में 2 ही डॉटर इंडिविजुअल बनने हैं, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। यहाँ किसी भी प्लेन के थ्रू क्लीवेज हो रही है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के थ्रू, यहाँ ट्रांसवर्स प्लेन के थ्रू, और यहाँ कैसे, एट सम एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। तो ये 4 तरह की क्या हुई बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी टाइप की बाइनरी फिशन के ऊपर। तो वो बाइनरी फिशन नहीं, सॉरी, हम दूसरी टाइप ऑफ फिजन के ऊपर। तो एक, अब उसमें तो क्या था कि 2 आपके डॉटर इंडिविजुअल्स बनने हैं एक पेरेंट से, लेकिन अब ये ऐसा फिजन जिसमें 2 से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट इंडिविजुअल का न्यूक्लियस जो है वो एक बार जो है डिवाइड नहीं करेगा, वो बहुत बार रिपीटेडली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तीसरी चीज क्या है कि ये जो डिवीजन होगी, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिजन जो है, उसमें क्या चीज है कि वो जो हो रही है वो कब होगी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वो कैसी थी, फेवरेबल कंडीशन में थी, और उसमें क्या था, न्यूक्लियस जो था पेरेंट इंडिविजुअल का वो एक बार डिवाइड कर रहा था, इसमें बहुत बार डिवाइड करेगा। तो हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि वेयर इज दैट टाइप ऑफ फिजन वेयर अ पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, मोर देन 2 डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिवाइड इनटू 2 मोर देन 2 डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वो कैसे होंगे, पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होंगे। और दिस अकर्स अंडर, कब बताया मैंने, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और यहाँ पर क्या है, हेयर द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स रिपीटेडली, एक बार डिवाइड नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी बनाया है। तो कैसे, अब एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6, सो मेनी टाइम्स। तो यहाँ तो 6 बनाया, और 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल क्या आ गया, एमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम दिस इज अ कॉजल एजेंट फॉर मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो है किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। यहाँ पर एमीबा का एग्जाम्पल आ गया, मतलब वहां पर हमने बात की थी सिंपल बाइनरी फिशन। तो एमीबा में भी हम ऐसे कह सकते हैं कि एमीबा में क्या चीज होती है, सिंपल बाइनरी फिशन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। लेकिन यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन, वहां कैसा, आपका फेवरेबल कंडीशंस। आप देख सकते हैं इसमें
कि अब सारों में अगर आप देखें, जैसे सपोज मैंने बात की आपसे बाइनरी, सिंपल बाइनरी के साथ अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किस में आया, यूग्लिना में, ठीक है। अगर मैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की बात करता हूँ किसमें, पैरामीशियम में। ओब्लिक कैसा, बाइनरी फिशन, तो ये किस में आया आपका, सीरेशियम। सीरेशियम, सीरेशियम देखिए थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, सीरेशियम थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, ये किस में आता है, डाइनो फ्लैजिलेट्स में। तो जो प्रोटिस्टन जो एल्गी है उसमें डिफरेंट हमारे पास एल्गी हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाई एटम्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, तो वहां पर डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, सीरेशियम। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पैरामीशियम कॉमन है, यूग्लिना भी याद रहता है, अमीबा भी याद रहता है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम भी याद रहता है, अमीबा भी याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या चीज़, सीरेशियम। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल बताएं, एक ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसमें सिंपल बाइनरी फिशन भी है और मल्टीपल फिजन भी होता है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटे, अमीबा, उसमें क्या आ सकता है, अमीबा। फाइन। तो ये सारी जितनी भी हमने डिस्कस की टाइप्स वो किस में पर्टिकुलरली किसके अंडर आया, फिजन के अंदर। अब नेक्स्ट जो मेरे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है दैट इज कॉल्ड बडिंग। तो देखिए बडिंग, बडिंग वर्ड कहाँ से आया, बड से आया। तो एक ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है एक्सटर्नली ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी और विद इन द पेरेंट बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, बड। और वो बड जो है जब न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट करेगा फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, तो डेट इज कॉल्ड बडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। तो यही चीज यहाँ डेफिनेशन में भी लिखी है कि व्हाट डू मीन बाय बडिंग। तो बडिंग इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू डॉटर इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने क्या चीज बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। वो बड जो है देखिए वो एक्सटर्नल भी हो सकता है डेवलप और इंटरनली भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कॉल्ड बड ऑफ अ सिंगल व्हाट, पेरेंट, ऑफ अ सिंगल पेरेंट। अब बड, अब देखें, अब वो बड जो है वो न्यू इंडिविजुअल डॉटर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करता है। अब ये बड जो है दैट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इस चीज़ को आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं कि जो बड है वो अगर यूनिसेलुलर है तो किस में, वो एग्जांपल क्या आएगी, ईस्ट। अगर हम ये कहें कि बड जो है वो मल्टी सेलुलर किस में होगा, तो वो हाइड्रा, वो किस में आएगा, हाइड्रा में। तो ये सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके अंडर आता है हाइड्रा। ईस्ट जो है आपका फंजाई है और क्लास कौन सी आती है, एस्कोमाइस्टीज, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ की यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल मैंने दे दी ईस्ट और हाइड्रा। अगर मैं ये कहूँ कि बडिंग का किस में हो सकती है जी बडिंग, तब आप एग्जांपल दे सकते हैं ईस्ट या हाइड्रा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बडिंग होती है फ्रॉम आई कैन से यूनिसेलुलर बड, तो मेरे पास एग्जांपल आएगा ईस्ट। अगर हम ये कहें कि बडिंग हो रही है, यस, किससे हो रही है, फ्रॉम मल्टी सेलुलर बड, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, हाइड्रा। अब देखते हैं क्या है कि ये जो बडिंग है एनिमल्स के केस में पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स के केस में जो है बडिंग हम दो तरह की बडिंग लेते हैं। तो एक बडिंग कैसी होगी जिसमें क्या है कि जो बड डेवलप होगा वो कहाँ होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। और एक ऐसी बडिंग होगी जिसमें क्या होगा, जो बड डेवलप होता है वो कहाँ होगा, इंटरनली विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल। तब हम ऐसे कहें कि भी दो तरह की हमारे पास बडिंग आई एनिमल्स में, कैसी, एक एक्सटर्नल बडिंग और दूसरी कैसी आई, इंटरनल। एज द नेम इंडिकेट्स, सिंपली एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल बड, internal budding means internal bud. So what do you mean by external budding, or I can say this is also called exogenous budding. So what do you mean by external or exogenous budding? So this is the development of a new daughter individual from a specialized external protuberance. Protuberance means ubhar, external protuberance, or I can say external bud arises on the where, on the outer surface of the parent body when the bud splits from the parent body। ठीक है, तो वो एक जैसे मान लीजिए एक पेरेंट बॉडी है, एक ये मान लीजिए पेरेंट बॉडी है आपकी इस तरह से, और इसके ऊपर अगर कोई बड डेवलप होता है इस तरह से, तो दैट विल सेपरेट आउट एंड दैट विल मेक अ न्यू, ये सेपरेट आउट होगा एंड दैट विल मेक अ न्यू डॉटर इंडिविजुअल। बट कैसा, वो कैसा बड होगा, एक्सटर्नल बड होगा। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं हाइड्रा। आप देखिए आपने बड बताया था मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रा है और ये बड कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा,
एक्सटर्नली डेवलप होगा, डेट मीन्स वो बोला क्या हमने, एक्सटर्नल बडिंग। सेकेंड टाइप आ जाती है बडिंग की इन एनिमल्स में, उसमें क्या आ गया, एंडोजीनस या इंटरनल बडिंग। तो इंटरनल देखिए डेवलपमेंट तो आपकी डॉटर इंडिविजुअल, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ द न्यू डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड इंटरनल बड। अब क्या आ गया, यहाँ था एक्सटर्नल बड, अब यहाँ है इंटरनल बड, और उसको हम यहाँ पर बोल क्या देते हैं, गेम्यूल, दैट इज कॉल्ड गेम्यूल। तो इंटरनल बड क्या बोला मैंने, गेम्यूल, फॉर्म्ड इंटरनली इन द पेरेंट बॉडी, विद इन द पेरेंट बॉडी, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी बट विद इन द पेरेंट बॉडी, वो पेरेंट बॉडी के अंदर है, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी। देखिए क्या चीज है, बच्चे पूछते हैं कि गेम्यूल्स जो हैं, गेम्यूल्स क्या चीज है, हम कहते हैं कि गेम्यूल दे आर इंटरनल बर्ड्स। तो कहते हैं कि भाई इंटरनल बर्ड्स हैं, ठीक है, ये न्यू इंडिविजुअल्स बना, तो और क्यों नहीं बना सकते, हम ये कहते हैं कि भाई इन गेम्यूल्स में क्या है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनके पास क्या है, स्पेशलाइज। देखिए अगेन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई गेम्यूल्स के पास ऐसी कौन से सेल्स हैं जो न्यू डॉटर इंडिविजुअल को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। तो व्हाट आर आर्कियोसाइट्स, तो आर्कियोसाइट दे आर टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल देखिए किनको कहा जाता है, टोटीपोटेंट सेल्स उनको कहा जाता है कि एक ऐसे स्पेशलाइज सेल जो पूरी की पूरी न्यू डॉटर इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, पूरी की पूरी होल बॉडी को डेवलप कर सकते हैं सिंगल, दैट मीन उनके एक सिंगल सेल से, तो उनको हमने क्या कहा, टोटीपोटेंट सेल्स। तो आर्कियोसाइट्स दे आर बेसिकली व्हाट, टोटीपोटेंट सेल, एंड दे कैन डेवलप अ न्यू डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैंने आप देखिए इंटरनल बट गेम्यूल, उन गेम्यूल में क्या होंगे, आर्कियोसाइट्स, और वो आर्कियोसाइट जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि न्यू डॉटर इंडिविजुअल को तैयार किया जाए। और उनमें कौन से सेल मैंने बोले, पर्टिकुलरली टोटीपोटेंट सेल। तो आर्कियोसाइट दे आर टोटीपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट दे आर टोटीपोटेंट सेल, दे आर प्रेजेंट कहाँ, इन द गेम्यूल्स। और गेम्यूल्स क्या है, दे आर इंटरनल बर्ड्स। देखिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ, और उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, स्पॉन्जिला, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। फाइन, तो ये स्पॉन्जिला जो है फाइलम पॉरीफेरा में आता है। फाइन, तो ये सारी एग्जाम जो टाइप्स मैंने आपको दो बताई, वो एक्सटर्नल बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग, ठीक है, वो जो है किसमें, पर्टिकुलरली एनिमल्स में हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज जनरल है कि बर्ड से जो है न्यू डॉटर इंडिविजुअल का बनना फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, दिस इज कॉल्ड बडिंग। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास जो है अनदर टाइप आ गई किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है फ्रेगमेंटेशन। देखिए क्या चीज है कि बडिंग जो है, बडिंग भी फ्रेगमेंटेशन की तरह ही लगती है, पर बडिंग में क्या चीज है, स्पेशलाइज बड बनेगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि पेरेंट बॉडी के क्या कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, फ्रेगमेंट्स बना दें। क्या बना दें, फ्रेगमेंट्स बना दें। हमने ये चीज देखी थी, बाइनरी फिजन हुआ, उसमें क्लीवेज हुई पेरेंट बॉडी की, तो 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बन गए। ठीक है, मल्टीपल फिजन में हमने देखा बहुत सारे जो है इंडिविजुअल्स डेवलप हो गए। लेकिन क्या चीज है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि भी एक पेरेंट बॉडी है, उसमें से कोई हिस्सा टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, कैसे कर जाता है, जैसे मान लीजिए हवा का झरोका आया, वेव एक्शन हुआ कुछ, ठीक है, तो वो ब्रेक कर गया। या फिर हम ऐसे कहें कि भाई जो पेरेंट बॉडी है उसकी जो है डेथ होगी, और डेथ से क्या हुई, उसमें ब्रेकिंग होगी, उसके फ्रेगमेंट्स बन गए, और उन फ्रेगमेंट्स से एक एक फ्रेगमेंट ने क्या बना दिया, डॉटर इंडिविजुअल को डेवलप कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फाइन। अब इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बडिंग से, हमारे पास क्या है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा पेरेंट बॉडी में, वो पेरेंट बॉडी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, और उनसे जो है न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन को, किससे, बडिंग से। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। वो फ्रेगमेंटेशन का मतलब, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन मतलब बनना, फ्रेगमेंट्स का बनना, और उन्हीं फ्रेगमेंट्स से क्या करना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का बनना। अब फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है कि 2 ही बनने हैं या बहुत ज्यादा बनने हैं। हमारे पास लिमिट है कि भाई 2 भी बन सकते हैं, हम वहां पर लिमिट है, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई 2 ही बनने हैं, 3 ही बनने, हो सकता है 3 बने, हो सकता है 4 बने, हो सकता है 2 बने। ठीक है, बट जब 2 ही सिर्फ बनेंगे तब हम उसको बाइनरी फिशन कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन देखिए क्या डेफिनेशन देखिए, वेयर अ पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स बाय, कैसे, किस तरह से हो सकती है, बाय द डेथ और वेव एक्शन। ठीक है, एंड द फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू डॉटर इंडिविजुअल। वो फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, न्यू डॉटर इंडिविजुअल बनाएंगे, आइडेंटिकल टू द पेरेंट। दिस इज डिफरेंट।
अब देखिए क्या चीज़ है, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बडिंग बिकॉज न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ पेरेंट बॉडी, नॉट फ्रॉम द बड, नॉट फ्रॉम द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड बड. बट यहाँ पर क्या है ना, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ पेरेंट बॉडी. स्मॉल पार्ट का मतलब भी क्या है, स्मॉल पार्ट देखिए क्लियर कर देता हूँ. स्मॉल पार्ट का मतलब फ्रेगमेंट. ठीक है, फाइन. और इसमें जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किस चीज़ का, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है मार्केशिया है, और एग्जाम्पल क्या है, रिशिया है. ये प्लांट्स में एग्जाम्पल है, लोअर प्लांट्स में आता है, जैसे सपोज ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स में मार्केशिया का एग्जाम्पल है, और साथ में क्या है, रिशिया. तो ये जो है दो एग्जाम्पल जो है आप किस में दे सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन में. एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ मैं कौन कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. चाहे आप एक ही एग्जाम्पल दें, पर वो दिमाग में रखें, सही और सटीक एग्जाम्पल आपने उसमें मेंशन करना है. और देखिए अब हमारे पास जो है वो लास्ट वन जो है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप जो है, मेन जो टाइप है वो कैसे, स्पोरुलेशन. देखिए स्पोरुलेशन वर्ड कहाँ से आया, स्पोर से आया. देखिए स्पोर्स क्या है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि स्पोरोजेनेसिस, वर्ड है स्पोरोजेनेसिस, तो स्पोरोजेनेसिस में क्या चीज़ होगी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पोरुलेशन की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या चीज़ है कि स्पोर्स बने, छोटे छोटे जो है स्पोर्स बनेंगे, एक तरह का सेल है. ठीक है, स्फेरिकल सेल है, और वो जो है क्या बना रहा है, न्यू डॉटर इंडिविजुअल बना रहा है फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. तो पहले आपको मैं थोड़ा सा स्पोर के बारे में बता दूं कि स्पोर्स क्या है. स्पोर्स दे आर माइन्यूट सिंगल सेल्ड, कैसे, थिन और थिक वॉर्ड प्रोपिग्यूल्स. ठीक है, यूनिट्स, प्रोपिग्यूल्स का मतलब यूनिट्स, किसकी यूनिट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की छोटी यूनिट. और उसको मैंने क्या कहा, माइन्यूट है, बहुत छोटे हैं, कैसे, सिंगल सेल्ड है, उसमें एक सिंगल सेल का मतलब उसमें एक न्यूक्लियस है और सिंगल सेल्ड है. ठीक है, और क्या, थिन भी हो सकता है, वो थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल. फाइन. तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरुलेशन. अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया स्पोर क्या होते हैं. फिर आने कम टू डेफिनेशन ऑफ स्पोरुलेशन इन टर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, with the help of spores is called sporulation. So sporulation क्या चीज़ हुई कि डॉटर इंडिविजुअल का बनना फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, किससे, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. ठीक है, फाइन. अब देखिए ये चीज़ कंप्लीट हो गई. यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई स्पोरुलेशन आप इतना यहाँ दें, और एग्जाम्पल जो है एक दो एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं, जैसे आपका ग्रीन एल्गा क्लेमाडोमोनास है या यूलोथ्रिक्स है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. नहीं आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो सिंपल आप राइजोपस फंगस है, राइजोपस, उसका आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं. लेकिन क्या चीज़ है कि जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि स्पोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो तो उसमें किस तरह से हम उसको टैकल करें. तो हम कहते हैं कि जी स्पोर्स हैं, बिल्कुल है, माइन्यूट है, सिंगल सेल्ड है, लेकिन यही स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. देखिए मोटाइल का मतलब मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ऐसे स्पोर्स भी हो सकते हैं जो नॉन मोटाइल है. दैट मीन्स वो नॉन मोटाइल का मतलब दे आर नॉट स्टेशनरी, दैट नो सॉरी, नॉन मोटाइल मीन्स दे आर स्टेशनरी स्पोर्स, एंड मोटाइल मीन्स दे आर मूविंग स्पोर्स. फाइन. सो देखें क्या चीज़, अगर मैं मोटाइल स्पोर्स की बात करता हूँ, हम कहते हैं कि इस वजह से वो मोटाइल होते हैं, कुछ चीज़ होगी उनके पास जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करते हैं. यस, दे हैव फ्लैजिला. उनमें क्या चीज़ होती है, फ्लैजिला, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से जो है ये मोटाइल स्पोर्स जो है मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इन जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनको हमने क्या कहा, जू स्पोर्स. जू मतलब मोटाइल. तो ऐसे स्पोर्स जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको मैंने क्या बोला, जू स्पोर्स. और इन स्पोर्स, जू स्पोर्स को जो है आप देख सकते हैं कि इनमें, ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जू स्पोर्स में जो एग्जाम्पल आएंगी, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको जू स्पोर्स. तो दे कैन बी सीन इन क्लेमाडोमोनास, ग्रीन एल्गा है. यूलोथ्रिक्स की बात करें, ग्रीन एल्गा, ये भी, इसमें भी आपको क्या मिल सकते हैं, जू स्पोर्स मिल सकते हैं. एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है, एक आपके पास फंगस है. ठीक है, तो फंगस देखिए हम कहेंगे भी मोटा जू स्पोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे क्लेमाडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एल्ब्यूगो, ऑल ऑफ दीज, तो तीनों में मिलेंगे. हम कहें कि जू स्पोर्स कहाँ मिलेंगे, जू स्पोर्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गा, इन फंगस
और बोथ ए एंड बी, तो दोनों में, फंगस में भी, पर फंगस में भी कौन सा, एल्ब्यूगो में मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक। बात करते हैं हम किसमें, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। तो नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं कर पाएंगे, तो कैसे स्पोर्स, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, दे मे बी कोनिडिया, दे मे बी स्प्रेंजियोस्पोर्स, ठीक है, फाइन। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स में कैसे कैसे है मेरे पास, कोनिडिया है या फिर क्या है, स्प्रेंजियोस्पोर्स है। हम देखें क्या है कि कोनिडिया की अगर हम बात करें तो कोनिडिया दे कैन बी सीन इन एग्जाम्पल, आगे क्या, पेनिसिलियम। अगर मैं स्प्रेंजियोस्पोर्स की बात करता हूँ, ये भी कैसे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, तो स्प्रेंजियोस्पोर की बात करूँ, दे कैन बी सीन इन राइजोपस, दिस इज फंगस, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि कोनिडिया जो डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है उससे बाहर बाहर की तरफ देखें, ये आपके पास जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं स्टेरिगमेटा, और ये कोनिडिया जो हैं ये एक्सटर्नली डेवलप हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे स्प्रेंजियोस्पोर्स हैं, ये जो डेवलप होते हैं कैसे होते हैं, एंडोजिनसली, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेंजियम, दिस इज कॉल्ड स्प्रेंजियम, फाइन। तो स्प्रेंजियम के अंदर जो डेवलप हो रहे हैं स्पोर्स, उनको मैंने क्या कहा, स्प्रेंजियोस्पोर्स। स्प्रेंजियोस्पोर्स भी न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएंगे, कोनिडिया भी न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएंगे, बट कोनिडिया डेवलप exogenously, sprangiospours develop endogenously within the body of the sprangium, but they develop externally. They develop externally means they are exogenous in origin. तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने, जो स्पोर्स की थोड़ी सी मैंने बात की, जो इंट्रोडक्शन दी, ये थोड़ा आपको एमसीक्यू में मदद करेगी। अदरवाइज स्पोरुलेशन बस यहाँ तक जो है ऊपर डेफिनेशन दी और एग्जांपल दे सकते हैं आप। तो थोड़ा सा अब देखिए, हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ देखा। तो फिजन को हमने देखा, हमने फ्रेगमेंटेशन को हमने देखा, स्पोरुलेशन को हमने देखा, ठीक है, और बडिंग को हमने देखा, फाइन। तो ये 4 जो हैं इनको थोड़ा सा मैं सम अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफ आउट करेंगे इसको, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बात की, उसके मैंने फीचर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। यूनिपेरेंटल होता है, इसमें कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, इसमें मियोसिस नहीं होगी, इसमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, और लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में ये मिलता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, फाइन। हमने बात की डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, ठीक है। फिजन में हमने बात की 2 तरह का फिजन, बाइनरी फिजन जिसमें 2 डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे सिंगल पेरेंट से, मल्टीपल फिजन जिसमें 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। बाइनरी फिजन को हमने जो है फर्दर कैटेगराइज किया कैसे, सिंपल बाइनरी फिजन जिसमें किसी भी प्लेन के थ्रू पेरेंट जो है इंडिविजुअल डिवाइड कर सकता है, बट बनाएगा कितने, 2 डॉटर इंडिविजुअल। लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू जो है पेरेंट बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू जो है क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ट्रांसवर्स में कैसे, ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू जो है साइटोकाइनेसिस होगा। ओब्लिक में क्या है, ओब्लिक का मतलब क्या है, ओब्लिक बाइनरी फिशन का मतलब जहाँ पर हम ये कहें कि साइटोकाइनेसिस होगा, बट कैसा, एट सम एंगल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पेरेंट इंडो। इन चारों में अगर आप देखें तो कितने डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, बाइनरी फिजन की टाइप है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। फिर बडिंग की बात की मैंने, ठीक है। बडिंग में मेरे पास क्या, बड से जो है आपकी क्या बनेंगे, न्यू डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। बट एनिमल्स के केस में ये कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल बडिंग भी हो सकती है, इंटरनल बडिंग भी हो सकती है। बाद में आ गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में क्या चीज़ होगी, फ्रेगमेंट्स बनेंगे पेरेंट बॉडी के, ठीक है, वेव एक्शन से वो ब्रेक कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं और वो न्यू डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्पोरुलेशन है। स्पोरुलेशन में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स से क्या बनेगी, न्यू डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो ये यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो है मैं एक और एस्पेक्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई कैन से वन मोर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको अलग से मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम अलग से टॉपिक को डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ इतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी इसमें इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।